Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 28th April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmiasacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmiasacademy.com to access some of our freely available video lectures. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about India's strategic silence on COVID-19, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So let us first of all understand the background of this article. We have covered so many articles where we have seen that US President Donald Trump has been consistently demanding a thorough investigation of origin of COVID-19. There has been a demand from US side that there must be a thorough investigation of Wuhan Institute of Virology that is suspected to have released the virus by mistake. And US is not buying the argument that the COVID-19 virus has been spread through wet market of Wuhan city. And now other allies of US like Britain and Germany have been also making similar demands, and recently Australia has become the next country who has made similar demands like that of US, Britain and Germany, that there should be a thorough independent investigation in order to fix accountability about release of this COVID-19 virus. You can see Australian Prime Minister Scott Morrison demanding an independent inquiry that must be free even of WHO, because role of WHO has been also come under some sort of cloud. WHO's credibility is also tarnished because of its ineffectiveness in curbing the spread of COVID-19. So now the world countries are demanding that WHO should also be kept out of the investigation of setting up the accountability. इस पे चाइना का रिस्पॉन्स देखते हैं. China's ambassador to Australia, Cheng Jingge, has responded very sharply, where Cheng Jingge has indirectly threatened Australia of a boycott of Australian goods in China. इन्होंने एक तरह की इनडायरेक्ट धमकी दे दी ऑस्ट्रेलिया को, जहां उन्होंने कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरह की बातें करेगा ऑफ सेटिंग अप इन्वेस्टिगेशन, जहां पे इस तरह के कोई मतलब ही नहीं है ऐसी चीज़ों का, इट इज़ अननेसेसरी थ्रेट टू सोवरेनिटी ऑफ चाइना, ऐसा इनका कहना है. और ये जो वायरस लीक हुआ है, इट इज़ अ थ्रेट फॉर एंटायर वर्ल्ड. इसमें ऐसा शक करना कि चाइना हैज़ एनी फाउल प्ले इन दिस एंटायर एपिसोड, इट इज़ अनजस्टिफाइबल. और इस कारण से अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरह के एलिगेशंस लगाता रहेगा चाइना के ऊपर, तो चाइनीज़ पीपल माइट गेट डिसगस्टेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और हो सकता है कि चाइनीज़ लोग ऑस्ट्रेलियन सामान का इस्तेमाल करना बंद कर दें, और वैसे हालात में ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने धमकी दे दी ऑस्ट्रेलिया को कि हम तो नहीं दे रहे हैं, सरकार तो नहीं दे रही, लेकिन लोग जरूर नाखुश हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं. तो एक तरह के इकोनॉमिक थ्रेट चाइनीज़ एम्बेसडर टू ऑस्ट्रेलिया ने दे दी है ऑस्ट्रेलिया को. और आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मर्चेंटाइज गुड्स टू चाइना एवरी ईयर. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ मर्चेंटाइज गुड्स दैट ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना एवरी ईयर इज़ वर्थ $30 billion. सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट. उसके अलावा बहुत सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं फॉर हायर स्टडीज़, और ये भी धमकी दी है चाइनीज़ एम्बेसडर ने कि इतने सारे स्टूडेंट्स इफ़ दे माइट गेट डिसगस्टेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में फॉर हायर स्टडीज़ जाना बंद कर दें, और इस कारण से ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ सकता है. हर साल लगभग ऑस्ट्रेलिया 10 से $12 बिलियन तक कमाता है बिकॉज ऑफ चाइनीज़ स्टूडेंट्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज़. सो कुछ एक इकोनॉमिक लॉस ऑस्ट्रेलिया को उठाना पड़ सकता है. इस तरह की एक धमकी दी है चाइनीज़ एम्बेसडर ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पे शार्प रिएक्शन दिया है. ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर मैरी स्पेने ने शार्प जवाब देते हुए कहा है दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ मेड ए प्रिंसिपल्ड कॉल. ऑस्ट्रेलिया ने तो एक बहुत ही जस्टिफाइबल तरीके से डिमांड की है ऑफ एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये जिस तरह का आउटब्रेक हुआ है इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर हैज़ बीन ए ह्यूज सोशल, इकोनॉमिक एंड इवन पॉलिटिकल डैमेज अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो ऑस्ट्रेलिया अपने जगह पे बहुत हद तक जस्टिफाइड है, प्रिंसिपल्ड है व्हेन इट इज़ डिमांडिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन. लेकिन चाइना का रिस्पॉन्स
बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल है एंड इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। चाइना ने एक तरह की इकोनॉमिक कोहर्जन की धमकी दी है एंड दिस इज़ अनजस्टिफाइबल, ऐसा कहा है ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर मॉरिस पेन ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया आगे भी इस तरह के डिमांड करता रहेगा एंड ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो एंगेज विद कंट्रीज लाइक यूएस, जर्मनी and Britain in order to ensure that there is a independent investigation in order to set up the accountability for spread of COVID-19. तो ये है ऑस्ट्रेलिया का रिस्पॉन्स। ऑस्ट्रेलिया हैज़ इन अदर वर्ड सेज दैट इट विल नॉट बच, वो चाइना की धमकी से डरेगा नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया का अप्रोच अभी तक क्या रहा है ऑन दिस मैटर। आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट इंडिया हैज़ मेंटेन स्ट्रैटेजिक साइलेंस ऑन दिस इशू। इंडिया काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से इस मामले पे काफ़ी चुप्पी बना के रखी है इंडिया ने अभी तक। We must understand the reason behind India's strategic silence on the issue. So इस फिगर की मदद से पहले समझते हैं, देन वी विल सी द टू इशूज इन डिटेल। इंडिया ऑल्सो नोन एज एलिफेंट इन इंटरनेशनल सर्कल। आपको एक बात और जाननी चाहिए कि इंटरनेशनल सर्कल में अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग जानवरों के नाम से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ नोन एज एलिफेंट बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एलिफेंट इन हिंदुइज्म। आपको पता है भगवान गणेश के कारण एलिफेंट एक सैक्रेड एनिमल माना जाता है हमारे देश में, और इस कारण से इंडिया को इंटरनेशनल रिलेशंस में एलिफेंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को कंगारूज भी बोलते हैं, न्यूजीलैंड को कीवीज बोलते हैं, चाइना को ड्रैगन बोलते हैं बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रैगन इन मैथोलॉजीज ऑफ चाइना। सो ये आर्टिकल कहता है दैट द एलिफेंट दैट मीन्स इंडिया हैज़ टू बैलेंस सो मेनी थिंग्स एट इंटरनेशनल स्केल। तो इंडिया सीधी साधे तरीके से चाइना को कंडेम नहीं कर सकता बिकॉज दैट विल हैव रिपरकशंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन्स व्हाई इंडिया हैज़ केप्ट साइलेंस ऑन द इशू। देयर आर टू मेन फैक्टर्स। फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट विद चाइना विल बी हाई फॉर इंडिया. It will be economic, political and strategic. Second, the strategic vision of multipolar world for India will be under threat if India severely criticize China. इन दोनों पॉइंट्स को जरा डिटेल में समझते हैं। So the first factor that has forced India to keep strategic silence on the issue is the cost of conflict with China. देखो ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएस, if they get into conflict with China, it will have इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन दीज कंट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं इस केस में ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है चाइना ने कि वो ट्रेड बहुत हद तक रोक देगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, और जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमिक इम्पैक्ट उठाना पड़ सकता है। लेकिन फॉर इंडिया द स्टेक्स आर हाई। इट वॉन्ट बी जस्ट लिमिटेड टू इकोनॉमिक बट इट विल ऑल्सो हैव स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो इंडिया के ऊपर होगा ही होगा। चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और अगर इंडिया किसी भी तरह का बहुत मेजर कन्फ्लिक्ट रेज करता अगेंस्ट चाइना देन दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन economy since China is largest trading partner. Second, there will be strategic impact also on India because if India starts pushing China too much, if India starts criticizing China too much, then China-Pakistan axis will become stronger, and in that case terrorism in Kashmir will be promoted, insurgency in Northeast will be promoted, and it will put some strategic cost for India. Third, there will be political cost for India as well if India engages in against China to a larger extent. आपको पता है that there are so many disputed territories between India and China. For example, you can see yellow color से हमने यहाँ represent किया Aksai Chin area that is in Ladakh region. Large part of area is under control of China. It is Indian territory, and this is has been disputed by China. उसके अलावा आपको पता है दैट द मैकमोहन लाइन बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट इंटरनेशनल बाउंड्री बाय चाइना, एंड चाइना क्लेम्स दैट एंटायर अरुणाचल प्रदेश टेरिटोरियली बिलोंग्स टू चाइना. तो ये कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और अगर इंडिया ने बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रेज कर दिया अगेंस्ट चाइना देन चाइना इट विल हैव सम पॉलिटिकल कॉस्ट फॉर इंडिया एज वेल. चाइना माइट गेट इंगेज्ड इनटू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इंडिया. ये सारे कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है या फिर यूएस है, दे डू नॉट शेयर बॉर्डर विद चाइना, सो दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल रिस्क और दे डू नॉट हैव मिलिट्री कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट चाइना. बट इंडिया शेयरिंग सच अ लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना ऑल्सो हैज सम ह्यूज पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री थ्रेट अगेंस्ट चाइना. So in short, India's stakes are high, and that is why India has maintained silence on this issue so far. दूसरा फैक्टर,
चाइना को बहुत हद तक इंडिया क्रिटिसाइज इसलिए भी नहीं कर रहा है बिकॉज चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियाज स्ट्रैटेजिक विजन फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड विजन जो है इंडिया का, उसमें चाइना का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। इसको हमें समझना है, ये पॉइंट हमें अच्छे से समझना होगा। और इस पॉइंट को हमें समझने के लिए पहले 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझनी होगी: यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड इज व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय वन कंट्री और इट्स अलाइज, वैसे सिचुएशन को हम कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। बाईपोलर वर्ल्ड मीन्स व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय 2 मेजर कंट्रीज एंड its allies, then it is known as bipolar world. And multipolar world, when there are so many regional powers and the world is not directly controlled by 1 or 2 countries but under influence of so many countries, उसको हम कहते हैं multipolar world। ऐसे हालात में जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि WTO, यूनाइटेड नेशन, इस पर कई सारे कंट्रीज़ का अपना इन्फ्लुएंस हो तो उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। ऐसे सिचुएशन को हम डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, सिंस सो मेनी कंट्रीज विल हैव से इन ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, इस कारण से इसको डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर भी बोल सकते हैं। और इंडिया का विजन है टू सेट अप ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ को अपना अपना ओपिनियन रखने का अधिकार हो, पावर हो। इंडिया वांट्स टू हैव डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर और इसके लिए चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को और डिटेल में समझते हैं, थोड़ी क्रोनोलॉजी भी देखते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन डिटेल। देखो, आफ्टर 1945, आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, the world entered into the age of Cold War that we all know. World War II ख़त्म होते ही पूरी दुनिया 2 मेजर ब्लॉक में बढ़ गई। US ब्लॉक that wanted to spread the idea of capitalism and USSR block that wanted to spread the idea of communism. That means the world became bipolar in nature. जब पूरी दुनिया में 2 पावर सेंटर्स बन गए और दुनिया भर की कंट्रीज या तो USSR को ज्वाइन कर रही थी या US ब्लॉक को ज्वाइन कर रही थी। ऑफ कोर्स तीसरा ग्रुप भी था जो नॉन अलाइन रहना चाहता था, इंडिया भी उसका हिस्सा था, बट द वर्ल्ड हैड नाउ 2 मेजर पावर सेंटर्स, US एंड USSR पावर सेंटर्स। लेकिन 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हो गया और उसके बाद से पूरी दुनिया भर में अगर कोई एक डोमिनेंट कंट्री बच गई तो वो थी US एंड इट्स के वेस्ट के एलाइज, जिसके साथ उन्होंने एक ग्रुप भी बना रखा है, मिलिट्री ग्रुप, जिसका नाम है NATO। तो US एंड इट्स NATO allies, they are mostly West European countries, they became the major dominant power in world affairs and world became again unipolar आफ्टर 1991। लेकिन 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से ही, यानी कि ये जो सेंचुरी जिसमें हम जी रहे हैं, इस सेंचुरी के बिगिनिंग से ही ये जो पावर स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बदलना शुरू हुआ अगेन, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ सम न्यू पावर सेंटर्स लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, इवन साउथ अफ्रीका। तो ये नए पावरफुल कंट्रीज इमर्ज होकर के आने लगे। ऑफ कोर्स इसमें सबसे पावरफुल कंट्री था चाइना। चाइना इमर्ज्ड एज मोर और लेस अ सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट स्टार्टेड टू पोज अ थ्रेट टू US। सो इस फिगर की मदद से मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। चाइना, ऑल्सो नोन एज ड्रैगन, मेड इट्स पोजीशन वेरी स्ट्रॉन्ग इन ग्लोबल ऑर्डर बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हो सकते हैं जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कैसे चाइना ने अपने आप को रीपोजिशन किया है ग्लोबल ऑर्डर में और अपने आप को एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कराया है। आपको पता है युआन को अब इंक्लूड कर लिया गया है एज ए हार्ड करेंसी इन IMF बास्केट। चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ऑन UN एजेंसीज नाउअडेज। आपको अभी हाल फिलहाल में पता होगा कि WHO की फंडिंग रोक दी है US ने, बिकॉज इट इज़ अक्यूज दैट इट एक्टेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड इट इज़ अ वेरी बिजार सिचुएशन, क्योंकि दुनिया भर में अभी तक एलिगेशंस लगाए जाते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर कि वो UN एजेंसीज को कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ इट्स मेजर फंडिंग। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई दूसरी कंट्री दैट इज चाइना पे इस तरह के एक्यूजेशन लग रहे हैं कि वो UN की एजेंसीज को कंट्रोल कर रहा है। सो ये एक पर्टिकुलर एपिसोड जहाँ पे चाइना के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो WHO को कंट्रोल कर रहा है, ये अपने आप में बताता है कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बदल चुका है। अब नए पावरफुल कंट्रीज भी इमर्ज होकर के आ रहे हैं हु आर चैलेंजिंग द सोल superiority of US in the global order, and now world is becoming from unipolar to bipolar again, and China is rising to challenge the unipolarity or superstructure of US in global order। और चाइना फैक्टर ने हेल्प किया है इंडिया को राइज करने में टू सम एक्सटेंट। इस बात को हमें अच्छे समझना होगा। इट इज चाइनाज राइज दैट हैज़ लेड टू इंक्रीज इन इंडो US टाइज। देखो,
चाइना के राइज के कारण अब यूएस इज ट्राइंग टू सपोर्ट इंडिया, यूएस इज ट्राइंग टू बिल्ड गुड टाइज विथ इंडिया इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिया टू राइज in Asian region in order to contain China. So in short, it is China factor that has helped India and that has forced US and its allies to get aligned with India in order to curb rise of China. इसको कुछ एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. हाउ चाइना फैक्टर हैज़ लेड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडो यूएस टाइज. देखो 2008 का इंडो यूएस न्यूक्लियर डील दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ माइलस्टोन इन इंडिया यूएस रिलेशंस. लेकिन ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के पीछे भी चाइना फैक्टर ही कारण है. ऐसा नहीं है कि यूएस हमारी न्यूक्लियर फील्ड में डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहता है. आपको याद होगा, मैं बता भी चुका हूँ, इट वाज यूएस ओनली हु डिड पुट ट्रेड सैंक्शंस ऑन इंडिया आफ्टर इंडिया कंडक्टेड ए पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1974 विथ नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. सो ये वही यूएस कंट्री है जिसने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे 1974 में, और ये वही यूएस कंट्री है जिसने 2008 में हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन किया in order to give us accessibility to nuclear technology and material for nuclear development in our country. And the reason behind such a U-turn is China factor, क्योंकि now US wants India to get strengthened up. US has emerged as one of the largest defense supplier of India after 2010. डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हमने साइन किया यूएस के साथ, फिर डिफेंस पॉलिसी ग्रुप सेटअप किया, फिर डिफेंस ट्रेड एंड ट्राइज इनिशिएटिव हमने 2015 में साइन किया. ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट इंडिया एंड यूएस हैव नाउ बिकम मेजर डिफेंस पार्टनर. इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जिसको मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया है यूएसए ने आउट ऑफ इट्स नेटो एलाइज. तो पहला नॉन नेटो कंट्री है जिसको मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस मिला है. इंडिया को STA1 का स्टेटस दिया है यूएस के पेंटागन ने, जो उसका डिफेंस हेडक्वार्टर है. इसका मतलब ये है कि नाउ इंडिया कैन एक्सेस टू सम ऑफ द क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज ऑफ यूएस. तो इंडिया और यूएस की डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन हो रही है. लेकिन इसके पीछे भी चाइना फैक्टर कारण है, क्योंकि आपको याद होगा ये वही यूएस है जिसने इंडिया को थ्रेटन किया था इन 1971 व्हेन इंडियन आर्मी वाज रेडी टू एंटर इनटू ईस्ट पाकिस्तान टू लिबरेट इट फ्रॉम पाकिस्तान एंड डिक्लेयर इट अ इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश. जब हमारी इंडिया की फोर्सेस बांग्लादेश में एंटर करने वाली थी, उस टाइम में वो पाकिस्तान का हिस्सा था और उसको ईस्ट पाकिस्तान की तरह जाना जाता था. और हमारी इंडियन फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में इसलिए एंटर कर रही थी क्योंकि पाकिस्तान की एट्रोसिटीज़ के कारण कई सारे बंगाली मुस्लिम्स इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर हो रहे थे और इंडिया के अंदर अननेसेसरी रिफ्यूजी प्रेशर बनता जा रहा था. और इस कारण से इंडियन फोर्सेस वे आर नाउ रेडी टू एंटर इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड लिबरेटेड इट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश. लेकिन इसमें सबसे पहला जो थ्रेट इंडिया को फेस करना पड़ा वो था फ्रॉम यूएस इटसेल्फ. यूएस वाज अ मेजर डिफेंस अलाई ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, और यूएस ने अपनी 7th नेवी फ्लीट भेजी थी बे ऑफ बंगाल में तो थ्रेटन इंडिया अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान. और इस कारण से इंडिया को फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन करना पड़ा रसिया के साथ, और रशियन फ्लीट को इनवाइट किया इंडिया ने इन बे ऑफ बंगाल इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ यूएस. तब जाकर के इंडियन आर्मी घुस पाई ईस्ट पाकिस्तान में, उसको लिबरेट कर पाई एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, the baseline is that it is China factor that has led to immense support for India from US and its NATO allies. China factor has led to strengthening of India's position in global order. हाल फिलहाल में इंडिया को एंट्री मिली इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम या ऑस्ट्रेलियन ग्रुप. इन सब में इंडिया को एंट्री इसलिए मिल पाई क्योंकि वेस्ट कंट्रीज लेड बाय यूएस सपोर्टेड इंडिया. और ये इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू कर्ब चाइना. दे हैव नो एनी नेचुरल एफिनिटी फॉर इंडिया. These West countries have been also supporting for India's entry to NSG. Some of them have also demanded, for example, Germany has also demanded for permanent seat for India in UNSC. तो इस तरह के सपोर्ट इंडिया को इसीलिए मिल पा रहे हैं क्योंकि चाइना राइज कर रहा है और इंडिया को एक राइवल पार्टनर की तरह डेवलप करने की कोशिश कर रही है वेस्ट कंट्रीज. तो इस तरह से इंडिया को फ़ायदा हो रहा है. चाइना फैक्टर हैज़ लेड टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाय यूएस एंड इट्स अलाइज इन इंडिया. सो एक तरह का ये इंडियन डायलेमा बन चुका है. इंडिया के लिए एक फॉरेन पॉलिसी में चाइना एक मेजर डायलेमा बन चुका है. इस डायलेमा को ज़रा समझते हैं. व्हाट इंडिया वांट्स अ स्ट्रॉन्ग चाइना. ये आप सबको सुन के थोड़ा बिजार लगेगा, बट येस, इंडिया वांट्स स्ट्रॉन्ग चाइना.
स्ट्रॉन्ग चाइना होने से क्या होगा, दैट दीज वेस्ट कंट्रीज विल कीप ऑन स्ट्रेंथनिंग देयर टाइज विथ इंडिया, दे विल कीप ऑन हेल्पिंग इंडिया टू अटेन ग्लोबल पोजीशन इन ग्लोबल ऑर्डर। और इस तरह से इंडिया का जो विजन है कि इंडिया की से भी बढ़े इन ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, एंड देयर शुड बी डिस्पर्सन ऑफ पावर, देयर शुड बी मल्टीपोलर वर्ल्ड, वो फुलफिल हो पाएगा मेनली बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर। बट वॉट इंडिया डज नॉट वॉन्ट, इंडिया डज नॉट वॉन्ट वेरी वीक चाइना। अगर चाइना बहुत कमज़ोर हो गया तो अगेन कहानी फिर वहीं पहुंच जाएगी जो हो गई थी आफ्टर 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, द वर्ल्ड विल बिकम अगेन यूनिपोलर। वंस चाइना डिक्लाइंस, वेस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस विल लूज इंटरेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड विल बिकम अगेन यूनिपोलर, एंड द से ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड न्यूली इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका विल बी लॉस्ट इन ग्लोबल ऑर्डर्स लाइक यूएन, IMF, WTO, और फिर से दुनिया इन वेस्ट कंट्रीज के डोमिनेंस के अंदर आ जाएगी। बट इंडिया एट द सेम टाइम डज नॉट वांट वेरी स्ट्रॉन्ग चाइना, क्योंकि अगर चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया देन इंडिया विल लूज इट्स डोमिनेंस इन साउथ एशिया रीजन। जो साउथ एशिया के इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं जैसे कि श्रीलंका, मालदीव, even Bhutan, Nepal and Myanmar, they all are getting slowly tilted towards, भूटान को तो कुछ एक्सटेंट तक नहीं बोल सकते, बाकी जो सारे कंट्रीज हैं नेपाल, म्यांमार, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव, दे आर गेटिंग स्लोली टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना, एंड द रीजन बीइंग राइजिंग डोमिनेंस ऑफ चाइना इन साउथ एशिया रीजन, जो इंडिया नहीं चाहता है। सो इंडिया डज नॉट वांट इंक्रीज ऑफ चाइनाज डोमिनेंस इन साउथ एशिया रीजन, दैट इज इमीडिएट नेबरहुड ऑफ इंडिया। साथ ही साथ अगर चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया देन Pakistan will get a boost and Pakistan will get engaged in promoting terrorism in India. So that is India's dilemma. हम नहीं चाहते कि चाइना बहुत कमज़ोर हो, हम नहीं चाहते चाइना बहुत मजबूत हो, और इस कारण से इंडिया ने इस तरह की प्रिंसिपल्ड अप्रोच ली है अभी तक ऑन दिस कोविड-19। इंडिया चाह रहा है कि वेस्ट कंट्रीज तो एक हद तक प्रेशर बनाएंगे ही चाइना के ऊपर, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज अवॉइडिंग अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन विद चाइना, एंड दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ मेंटेन्ड सच ए स्ट्रैटेजिक साइलेंस ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। और इंडिया का अप्रोच टुवर्ड्स चाइना, इसके लिए एक टर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको हमने देखा था पार्शियल कंटेनमेंट एंड पार्शियल इंगेजमेंट, उसको दूसरे तरीके से सॉफ्ट बैलेंसिंग भी कहते हैं। सॉफ्ट बैलेंसिंग टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, खासकर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। सॉफ्ट बैलेंसिंग जहां पे हम चाइना के साथ एक तरफ तो ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेड भी करते हैं, आई टोल्ड यू चाइना इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, एट द सेम टाइम कुछ हम मिलिट्री इंगेजमेंट करते हैं चाइना के राइवल्स के साथ मिल करके। फॉर एग्जांपल मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज विद जापान एंड US, उसके अलावा हमने क्वाड इनफॉर्मल ग्रुप बना रखा है इन ऑर्डर टू पुट सम स्ट्रेटजिक प्रेशर ऑन चाइना। तो इस तरह के अप्रोच को हम कहते हैं सॉफ्ट बैलेंसिंग, जहां एक तरफ हम इंगेज भी हो रहे हैं चाइना के साथ, जहां दूसरी तरफ हम चाइना के ऊपर थोड़े बहुत प्रेशर भी बना रहे हैं, बट वी आर अवॉइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विथ चाइना। उसी के अगेंस्ट बिल्कुल अपोजिट हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान कैन बी नोन एज हार्ड बैलेंसिंग, जहां पाकिस्तान की तरफ हमारी जो अप्रोच है, जब वी आर इंगेज इन फुल फ्लेजेड कन्फ्लिक्ट, हमारे यहाँ पे अक्सर क्रॉस बॉर्डर सेलिंग भी चलती रहती है, एट द सेम टाइम ट्रेड वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो पाकिस्तान के टुवर्ड्स हमारी पॉलिसी कैन बी नोन एज हार्ड बैलेंसिंग। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, एंड दिस पॉइंट्स आई हैव टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ मिस्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके स्पीच दैट ही हैड डिलीवर्ड एट रामनाथ गोयंका मेमोरियल लेक्चर। वहाँ पे जो उन्होंने बेसिक पॉइंट्स बताए आप इनको लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज टू प्रिजर्व नेशनल इंटरेस्ट, और कोई एलिमेंट होता नहीं है, देखो कोई मॉरलिटी कोई एथिकलिटी होती नहीं है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। फॉरेन पॉलिसी इज एन आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। तो अभी कोविड-19 का क्या एथिकल एलिमेंट है उससे वी आर नॉट मच कंसर्न। इस कोविड-19 के बाद फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की इंटरेस्ट को कैसे प्रिजर्व किया जा सके, वो सोल ऑब्जेक्टिव है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। दूसरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ऐसा कहना, ऐसा आज के बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यूएस इज आवर फ्रेंड, चाइना इज आवर एनिमी, बट ये सही नहीं है। देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड। आपको मैंने कई सारे एग्जांपल दिए जहां मैंने आपको बताया कि कैसे यूएस ने बहुत हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है टू प्रमोट टेररिज्म इन इंडिया। सो देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, इट इज़ वी हु हैव टू फ्रेम आवर फॉरेन पॉलिसीज इन सच ए मैनर टू प्रिजर्व आवर नेशनल इंटरेस्ट। और इसी कारण से हम चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएंगे। वी विल मेंटेन स्ट्रैटेजिक साइलेंस ऑन दिस
मैटर। अभी तक तो कम से कम हमने यही अप्रोच लिया है। The next article is taken from environment segment. It is about migratory species, and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So this article is about Amur falcons. Amur falcons एक तरह के migratory species होते हैं. They are raptors and they travel about 22,000 kilometers every year. So हर साल गर्मी के टाइम में in the months of April, May, June, they get engaged in breeding in this region of the world. ये जो ईस्ट चाइना वाला रीजन है, साइबेरिया रीजन है या नॉर्थ कोरिया रीजन है, वहाँ पे गर्मी के टाइम में they get engaged in breeding. लेकिन जैसे ही अक्टूबर आता है इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जाती है, and to avoid the chilling effect of cold winter in this region, they start migrating towards South Africa. और साउथ अफ्रीका में जाकर के वो समर्स एंजॉय करते हैं। एंड इन देयर पाथ टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका दे हॉल्ट और दे टेक ए स्टॉप ओवर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक मणिपुर एंड नागालैंड। और नागालैंड में जो डोयांग लेक है दैट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर स्टॉप ओवर ऑफ अमूर फाल्कन्स, और इस कारण से नागालैंड इज ऑल्सो नोन एज फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और एक बात आपको और जाननी चाहिए कि इन अमूर फाल्कन्स का नाम फाल्कन इसलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ फाल्कन रिवर दैट फ्लोज बिटवीन रसिया एंड चाइना। और ये जो रीजन है फाल्कन रीजन, फाल्कन रिवर का दैट मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन रसिया एंड चाइना, इस रीजन में अमूर फाल्कन बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेट अस ऑल्सो सी द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दिस अमूर फाल्कन। दे आर लीस्ट कंसर्न्ड कैटेगराइज्ड इन IUCN रेड डेटा बुक, बट दीज स्पेसीज आर प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 under Schedule 1. Plus, these species are also protected under Convention on Migratory Species, जिसका इंडिया सिग्नेटरी है. That means it is mandatory on India to protect these species, Amur falcons, from getting hunted or getting smuggled. उसके अलावा एक बेसिक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर इस तरह के बर्ड्स इतने लंबे डिस्टेंस को कैसे ट्रैवल करते हैं विदाउट गेटिंग डेविएटेड। 22,000 किलोमीटर ये हर साल ट्रैवल करते हैं एंड दे डू नॉट लूज देयर पाथ। सो दीज स्पेसीज आर वेरी गुड इन ट्रेसिंग देयर पाथ। कुछ एक बर्ड जैसे कि पिजन्स वेयर तो यूज्ड एज मैसेंजर्स राइट फ्रॉम द एंशियंट टाइम। दे वर यूज्ड इवन एज मैसेंजर्स ड्यूरिंग World War I and World War II for sending informations across army camps. So the basic question rises कि how they trace their path. So there have been 3 points, the 3 ways through which they trace their path. First is the of course sun's position. तो sun का पोजीशन और डे लाइट का टाइम देख करके वो समझ जाते हैं कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है। सेकेंड इज देयर मेंटल मैपिंग। दे आर वेरी गुड इन मेंटल मैपिंग लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट, और मेंटल मैपिंग करके वो रास्ता ट्रेस कर लेते हैं। थर्ड, दे ऑल्सो डू ट्रेसिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये बर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड्स को ट्रेस कर लेते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि हम सब जानते थे अभी तक कि बर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करते हैं, लेकिन वी डिड नॉट नो हाउ एग्जैक्टली बर्ड्स डू ट्रेस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हाल फिलहाल की एक रिसर्च डेवलपमेंट से हमें ये पता चला है कि इन बर्ड्स की आँखों में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनयूजुअल प्रोटीन। दैट प्रोटीन इज नोन एज CRY4 एंड दिस अनयूजुअल प्रोटीन नेम्ड CRY4 helps these birds to visualize magnetic fields. तो ये इस साल हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। The next article is taken from national segment. It is about trends in world military expenditure. India among top 3 military spenders according to this report. This is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So Trends in World's Military Expenditure 2019 report has been published by Stockholm इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हर साल जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर का ट्रेंड होता है उसकी रिपोर्ट ये इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे एग्जाम में आंसर राइटिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ज़रा देखते हैं। सो द टॉप 3 मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाली जो कंट्रीज़ हैं दे आर US, चाइना एंड इंडिया। US expenditure last year on armed forces
और इन डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज 732 बिलियन यूएस डॉलर्स। जबकि दूसरे नंबर पे चाइना है जिसकी एक्सपेंडिचर काफ़ी कम है, दैट इज़ ओनली 261 बिलियन यूएस डॉलर कमिटेड बाय चाइना ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर, दैट इज़ 2019। जबकि इंडिया ने 71 बिलियन डॉलर खर्च किया है और इंडिया तीसरे नंबर पे है एज फार एज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 1 ईयर इज़ कंसर्न। इंडिया का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज 2.4% ऑफ इट्स जीडीपी इन 2019। साथ ही साथ हमें पाकिस्तान का भी स्टेटस जानना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन तो हम ये फैक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने 2019 में लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए ऑन इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड पाकिस्तान स्पेंड्स अबाउट 4% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स। ओवरऑल पाकिस्तान का रैंकिंग आता है 24th एज फार एज इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर इज कंसर्न्ड। The next article is taken from Assam segment. It is about Chuckman and Hajong tribes. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam tribes point of view. Chuckman and Hajongs need help rights group. अब ये न्यूज़ आर्टिकल सरल शब्दों में कह रहा है कि चकमा और हजोंग ट्राइब्स के लोग बहुत सारे इंडिया में रिफ्यूजीज़ की तरह रहते हैं और उस कारण से इनके पास राशन कार्ड नहीं है एंड दैट इज़ वाई दीज पीपल आर सफरिंग, दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट इन दिस प्रेजेंट ऑनगोइंग लॉकडाउन। अब ये न्यूज़ अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट चकमा एंड हजोंग ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर ईयर बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो चकमा और हजोंग ट्राइब के बारे में ज़रा सा समझते हैं। ये चकमा एंड हजोंग ट्राइब्स आर द पीपल हु ओरिजिनली लिव्ड इन चिटगोंग हिल ट्रैक्ट ऑफ बांग्लादेश। तो पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था ये वाला रीजन, और उसके जो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट वाला एरिया है उस रीजन में रहने वाले ट्राइबल लोगों का नाम है चकमा एंड हजोंग्स। और 1960s में यहाँ पे जब ये ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था वहाँ पे पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डैम प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम था कप्ताई डैम प्रोजेक्ट, और इस डैम प्रोजेक्ट के कारण इन सारे लोगों के बहुत सारा जो एरिया इस रीजन में वो सबमर्ज हो गया, डूब गया, एंड दैट इज़ वाई मैनी ऑफ द चकमा एंड हजोंग्स हैड टू लीव देयर नेटिव प्लेस एंड एंटर इनटू इंडियन स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम थ्रू लुसाई हिल्स ऑफ मिजोरम। तो लुसाई हिल्स भी नाम आप याद रखना। तो पहला कारण वाई द चकमा एंड हजोंग्स हैव एंटर इनटू इंडियन स्टेट इज द सबमर्जेंस ऑफ देयर नेटिव प्लेस बिकॉज ऑफ कप्ताई डैम प्रोजेक्ट। द सेकेंड रीजन, Chakmas are mostly Buddhist while Hajongs are mostly Hindus, and most of these tribal people faced religious persecution in East Pakistan. अब तो वो बांग्लादेश बन चुका है, so they faced religious persecution and that is why they left their country and entered into Indian states. कुछ एक फैक्चुअल चीज़ें याद रखना। असम में चकमा लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया है, लेकिन बहुत सारे चकमा और हजोंग्स अभी भी ऐसे हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह रहे हैं जो अभी भी रेफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं। बट वंस दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट गेट्स इनैक्टेड देन दी चकमा एंड हजोंग्स विल ऑल्सो गेट सिटीजनशिप स्टेटस, और इसके लिए ये ट्राइब्स का नाम इस साल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दे आर अबाउट टू गेट सिटीजनशिप स्टेटस इन दिस पर्टिकुलर ईयर आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 236 to 240. Topic number 236 is about 20th livestock census in India. So Department of Animal Husbandry and Dairying has conducted 20th livestock census report. And total livestock population is about 535 million in our country, and India has registered a growth of about 4.6% overall increase in livestock census as compared to the census that was conducted in 2012. और ये जो सेंसस है दैट काउंटेड द नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. अगर स्टेट वाइज पॉपुलेशन देखा जाए लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, जबकि कैटल का पॉपुलेशन हाईएस्ट है वेस्ट बंगाल में. तो आपको लाइव स्टॉक और कैटल में अंतर थोड़ा समझा देता हूँ. कैटल मतलब वो एनिमल जो हमें मिल्क देते हैं या जिनको हम मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिल्क एंड मीट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि लाइव स्टॉक जैसे कि हैन हो गया या फिर वो एनिमल जिसका हम कॉमर्शियल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हॉर्सेस, वो भी लाइव स्टॉक का हिस्सा होते हैं. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कैटल एंड लाइव स्टॉक. और लाइव स्टॉक्स का टोटल पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, जबकि कैटल का पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे आगे है वेस्ट बंगाल.
Please attempt this question on the basis of this topic. Topic number 237 is about Global Hunger Index report. This Global Hunger Index report is published every year by Concern Worldwide, that is an agency of Ireland, and Wealth Hunger Life, that is a German organization. And this indicator is based on 4 points, that is undernourishment, child stunting, child wasting, and child mortality. And according to Global Hunger Index report of 2019, India was ranked 102 out of 117 countries, and the score of India was only 30.3, and that is why India was listed in a group of serious hunger problem. Please attempt this question on the basis of this topic. Topic number 238 is about snow leopard. Snow leopards have been categorized as vulnerable in IUCN Red Data Book. Snow leopard are found in 12 countries. They are India, Nepal, Bhutan, China, Mongolia, Russia, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan. सारे नाम आप याद मत रखो, बस आप जोन वाइज तो याद रखो कि ये साउथ एशिया के नदर्न रीजन में मिलते हैं, सेंट्रल एशिया में मिलते हैं, उसके अलावा रसिया और चाइना और मंगोलिया में मिलते हैं। 3 इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। फर्स्ट इज ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के हिसाब से ये जो 12 कंट्रीज़ हैं, दे हैव कम टुगेदर एंड एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड। उसके अलावा एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2008, और इसके अंदर इन 12 कंट्रीज़ की सरकारें प्लस प्राइवेट एजेंसीज़ प्लस NGOs जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में लगी हैं, वो सब आकर के साथ में दे आर वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। जबकि तीसरा एक प्रोग्राम जो इंडिया अकेले चला रहा है जिसका नाम है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। इस सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर स्नो लेपर्ड्स हु आर मेनली फाउंड इन द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, दे आर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। इन 4 स्टेट्स में सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो leopard. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 239 is about solely chip technology. So Google's advanced technology and project division has been developing solely chip technology which can be used in wearables, phones, computers, cars and internet of things device. तो सरल शब्दों में इन solely chip technology को अगर हमने अपने कपड़ों में लगा लिया और एक उस तरह का रडार हमने मान लो अपनी गाड़ी पे लगा दिया, तो अब अगर हम अपना हैंड वेव करेंगे तो गाड़ी हमारा सिग्नल पहचान लेगा that we are wanting this car to move or something like that. So this solely is a dedicated radar chip on the foot of pixel to collect raw data of hand gestures and then interpret them correctly for right command. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 240 is about Framework for Acceptance Development Fund. The RBI has said that Framework for Acceptance Development Fund will be set up to increase acceptance of debit and credit cards in Tier 3 and Tier 4 cities. And this was indicated in the payment system vision document of 2021 of RBI and also recommended by the Committee on Deepening of Digital Payments that was chaired by Nandan Nilekani. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 231 to 235 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 236 to 240, can be attempted by students and you can share your answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.